That was wonderful welcome song, students. Love is how you stay alive even after you have gone. It's the love of our founders which is with us even today. Ivalese rope laviele dari, tayasato velu gela gaganavari. The seed of New Apostolic English High School, sown by our founders, has transformed into a huge tree, imparting high-quality education to all strata of society. Every year, we celebrate birth anniversary of our founder, respected Les Vincent Bauer Sir, with zeal and enthusiasm as Founders Day on 24th January. This year also we celebrated Founders Sir's birth anniversary with pomp and show. As a part of Founders Day celebration, we have organized the annual social gathering. To grace today's event, we have eminent personalities from the city of Nagpur, Honorable Bhaskar Jhode Sir, Education Officer, Honorable Dr. Prashant Bhandarkar, a renowned gastroenterologist and liver specialist, Honorable Sanjay Pense Sir, the producer, director and senior dramatist, respected Lily Mitra Sir, Lily Mitra Madam, and respected Prakash Benjamin Sir. We are extremely delighted and honored by their presence. To welcome these esteemed personalities, here I respectfully invite our Headmistress Madam, Dr. Mrs. Vandana Benjamin, for her welcome speech. Please, Madam. A very good evening to one and all. And today is the annual gathering of New Apostolic English High School, New Apostolic English Pre-Primary Primary School, Dr. Bauer Junior College and Vincent Degree College. We are very happy to have our esteemed guests with us. As you all know that academics and co-curricular activities goes together. And so we are delighted and happy to show you the presentation of our student. But before that, the guests who are in our midst, our chief guest, Dr. Mr. Bhaskar Jhode Sir. He is the senior education officer in the Jilla Parishad, well-renowned educationist, and is really very devoted, dedicated towards his profession. Today, in spite of his busy schedule, he has given his time and is with us. We are very thankful to you, sir. We welcome you on this occasion and we are happy to have you in our midst. The other dignitaries and the guest of honor, Sanjay Rajababu Pense sir, a renowned dramatist, producer, director, and throughout his life he is in the field of drama and acting, well known in Nagpur city. He is in our midst and we welcome you, sir, at this moment. We also welcome our other guest who has taken his valuable time and is with us, Dr. Prashant Bhandarkar sir, a gastroenterologist and a liver specialist of Nagpur city, well known everywhere, is with us and we welcome you, sir, at this moment. The other dignitaries, Dr. Reverend Advocate Prakash Benjamin, who is with us, retired from Ministry of Defence and is with us today. We welcome him also. And very special Mrs. Lily Mitra ma'am. We are very privileged to have Madam Lily with us, who is by profession a beautician
and educationist. Both of it goes together, and she is always behind. A person should be educated and has a inspiration, gives inspiration to all. She has taken her time and is with us. We welcome you, ma'am, at this moment. Thank you. थँक्यू मॅडम. काही माणसे मोठी असतात कर्तृत्वाने, काही माणसे मोठी असतात नेतृत्वानं. प्रकाशले हे सदन अशा माणसांच्या तेजानं स्वागत सत्कार करण्यास मान्यवरांचा आदर भावानं. The Indian tradition of welcoming guests has not changed despite of many changes India has gone through. Offering fresh fragrant flowers to guests is a gesture of goodwill and respect. So, we would like to welcome our guests and also felicitate them. So, here I request our principal madam, Dr. Ms. Vinita Bauer, to give floral welcome. Zode sir. Thank you so much. Now, my request is to Dr. Vandana Benjamin Madam to welcome Honorable Dr. Prashant Bhandarkar sir. Thank you. I again request respected Principal Madam to welcome Honorable Sanjay Pense sir. I request Principal Madam to welcome Honorable Sanjay Pense sir. Now, again I request Dr. Vandana Benjamin Madam to welcome our guest, respected Lily Mitra Madam. कब हमसे बातचीत करेगा? When will your time be? You never know. हमें नहीं जानते कि हमारा समय कब आएगा कि प्रभु हमसे बात करे. As a part of felicitation of our guests, we are going to present a memento to our guests. So here I request Principal Madam and Headmistress Madam to do the honor. As a respect, we are felicitating our guests with shawl and memento.
Principal Madam is felicitating respected Bhaskar Zode sir. Now our guest Dr. Prashant Bhandarkar will be felicitated. So Principal Madam, Headmistress Madam is felicitating him with a shawl and memento. Now I request Principal Madam to felicitate our guest Honorable Sanjay Pense sir. Presenting a memento and shawl is a gesture of respect and goodwill. Now I request Dr. Vandana Benjamin Madam to felicitate our guest Honorable Lily Mitra Madam. So we are really honored to have our esteemed guest amid us. We cannot forget on this occasion to welcome the two pillars of our school, respected Principal Madam and respected Headmistress Madam. So I request respected Chande Madam to welcome our Principal Madam, Dr. Miss Vinita Bauer. I now request Dr. Manorama Mishra Madam to welcome our Headmistress Madam, Dr. Mrs. Vandana Benjamin. We are extremely honored and delighted by the presence of all our guests who have taken out their precious time for us. School annual report is developed by the schools to outline what the school has undertaken and how the school has performed for a particular period. New Apostolic English High School endeavors for all-round development of students. It undertakes various co-curricular, extracurricular activities along with the academic development of the students. To brief about school's performance and achievements during the session 2022-23, I invite respected Principal Madam to present annual report of the school. Please, Madam. Respected Zode sir, respected Dr. Bhandarkar, respected Sanjay Pense sir, respected Lily Mitra ma'am, respected Benjamin sir, my dear headmistress, dear HODs, all the honored parents, invited guests, dear teachers, and my very loving students. Today, when we are having the annual social gathering of New Apostolic English High School, primary school, pre-primary school, and junior college,
First of all, I take this opportunity to welcome our honored guests in our midst and also our honored parents who have taken out their time to grace this occasion and encourage the students. My heartiest welcome to all of you. I am not going to take much time, but it is a custom to tell about the school report. I would speak 2 lines only, that the school was started by our honored founders, Bishop Vincent Bauer sir and respected Mother ma'am, and so we are very happy and proud about this occasion, that they have given us this opportunity to teach and educate children in the South Nagpur area. I am privileged with our staff members. I give my sincere thanks to our founders that we are the torch bearers of the vision. And today, I am very proud to tell you this, that with the efforts and the cooperation of our education department and cooperation of our parents, our school has reached to heights, and today the SSC and HSC result of our school every year is 100%, with students appearing in HSC and SSC exam in merits scoring above 90%. In the all-round development, the school has maintained a standard, and with this we are happy and very proud to tell you that students have participated in the state boxing championship. Students have excelled well, and therefore we will also felicitate them. We are happy that today's education, which is the education with digital technology, and in the digital technology it is necessary that children should be taught different subjects. This year we have introduced robotics, which has helped us to see that children are also going to learn the future education in the school only, so that a base can be developed. I am happy to tell you all that it has been a very, very excellent journey for our school. When we see the future students who have passed out from our school, they are doing well, and so I do not want to take much time because we have to see the program of our children. I would only request our guests to see the program, encourage the children. I would request all our parents to be in harmony and cooperate so that we can showcase the talents of our children in the cultural program, which will be presented very shortly. With this, again I give my thanks to all our guests and also to our parents. Thank you very much. Thank you. Of standard 10, who has won a gold medal in Kwam Ki Do Martial Arts at Khasdar Kida Mahotsav. He has bagged the gold medal and we are very proud of you, Shubham. So I here request our honorable guest Zode sir
to felicitate him. So, it's a proud moment for all of us. Thank you. We have number of students. So, next is Master Vinayak Dubey, again from Standard 10, who has been selected in divisional level boxing championship. It's request to Dr. Bhandarkar sir to felicitate him. We have Prayash Sharnagat from Standard 10, who has been selected in divisional level boxing. Here my request to Sanjay Pense sir to felicitate him. We have Saksham Shahu, again from Standard 10, who has been selected for divisional level boxing championship. Here my request to Honorable Lily Madam to felicitate our student. Next is Ayush Mankar, who has achieved a remarkable achievement in the field of music. Ayush, who is in Standard 12, has bagged the 4th position in Vidarbha Khuli Film Geet Gayan Spardha in Wardha. He has also participated in Archaeodician Interreligious Choir competition. He has won the first prize and conferred with the title Voice of Nagpur. Let us felicitate him. I request Honorable Benjamin sir to do the honor to felicitate Ayush Mankar. So he is not present, but on his behalf we would like to felicitate our teacher Shubhangi Mankar. She should come, and she is mother of Ayush. So it's really a proud moment for the apostolic family that these students have brought laurels to the school. So I request all the dignitaries to be please seated. Now, here is the time to take advice and guidance from our honorable guests. First of all, I invite Honorable Dr. Prashant Bhandarkar sir to speak few words on this occasion. Please, sir. Hello. Good evening, everyone. Good evening, dear students. Good evening, dear parents and dignitaries on the dais. Honorable Lily Mitra Madam, Benjamin Madam, Jode Sir, Bauer Madam, Benjamin Sir, and Sanjay Pense Sir. मैं और मेरे मित्र और मेरे गुरु श्री संजय पेंडसे मैं आपको बता दूं कि मेरे नाट्य क्षेत्र के गुरु हैं। सबसे पहले मुझे नाटक में काम करने उन्होंने सिखाया था। तो हम आते समय बात कर रहे थे कि कौन सी लैंग्वेज में बात किया जाए। हमने सोचा हिंदी में बात करेंगे, इसलिए मैं आप सबकी, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, टूटी फूटी हिंदी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपसे हिंदी में वार्ता करूं। पहले तो खुशी के मारे मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बात करूं। इतना सुनहरा, इतना सुंदर अवसर है ये। मेरा तो दिल करता है कि वहाँ पे आके आप सबके बच्चों के साथ बैठ के प्रोग्राम देखूं, गेस्ट लोग को सुनूं, पर मुझे एक्चुअली थोड़ा डिसिप्लिन आज मेंटेन करना पड़ रहा है कि मुझे यहाँ पे चीफ गेस्ट करके बुलाया गया है। तो ये मेरा दूसरा अवसर है ये स्कूल में आने का।
कुछ वर्ष पहले मैं 15 अगस्त को मुझे बुलाया गया था और ये मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि मेरे को मुझे डॉक्टर बावर मैडम ने और बेंजामिन मैडम ने फिर से इस स्कूल में आने का अवसर दिया, और वो भी एक एनुअल सोशल गैदरिंग के उपलक्ष्य में। और 2 दिन पहले जो आपका फाउंडर्स डे सेलिब्रेट हुआ, उसका पार्शल सेलिब्रेशन के इसमें मुझे बुलाया गया। तो ये मैं तहे दिल से स्कूल का और मैडम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बच्चे लोग परफॉर्म करने के लिए बेताब है, पेरेंट्स लोग उनको देखने के लिए उतावले है, तो ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहिए। बट जो भी अभी एनुअल रिपोर्ट के दौरान मैंने देखा कि आपकी स्कूल बहुत ही ज़्यादा प्रगतिशील मार्ग पे है। स्पोर्ट्स के मार्ग में क्षेत्र में बोलो या फिर कला के क्षेत्र में बोलो, आपको साइंस ड्रामा कंपटीशन में प्राइजेस मिले हैं। अभी वॉइस ऑफ नागपुर करके अवार्ड से किसी को नवाजा गया। जूडो, मार्शल आर्ट्स, ये सारे स्पोर्ट्स में भी आपकी स्कूल बहुत तरक्की कर रही है। तो आज भी यहाँ बैठे बैठे मैं देख रहा हूँ ऑल इज वेल है, तो कोई यहाँ कोई शाहरुख बनेगा आगे जाके, फिर एक सिकंदर जो जीता वही सिकंदर वो देगा, तो शायद कोई आमिर खान बनेगा। तो ये टैलेंट जो है ये आप में से ही उभर के आएगा। स्पोर्ट्स में जाके कोई कल सचिन तेंदुलकर बनेगा, कोई ऐश्वर्या राय बनेगी, कोई माधुरी दीक्षित बनेगी। तो ये एक ओकेजन है कि आप जो गैदरिंग के माध्यम से आप ही के बच्चों में का हुनर और टैलेंट ढूंढते हो और सबके सामने प्रस्तुत करते हो, और सभी हर बच्चे को जो मौका दिया जा रहा है वो मुझे लगता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आज स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है, नर्सरी से लेकर 10th स्टैंडर्ड, हर बच्चे को आज परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। तो ये एनुअल गैदरिंग का जो ओकेजन है कि पूरी पढ़ाई वगैरह सब भूल कर एक जो आनंद, उत्साह और मौज और एंटरटेनमेंट का वातावरण जो ये पीरियड में रहता है, उसका पूरा आनंद आप लोगों को उठाना चाहिए। बाकी पढ़ाई के क्षेत्र में आज ज़्यादा मैं उल्लेख करने के लिए नहीं मौजूद हूँ, लेकिन सिर्फ एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये कहूँगा कि डॉक्टरी क्षेत्र में भी कला का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैं तो बचपन से हर मोड़ पर कोई ना कोई ड्रामा में काम करते आया हूँ। मैंने प्राइमरी में काम किया, मैंने 10th स्टैंडर्ड में भी मैंने नाटक में काम किया, 11th में काम किया, MBBS करते हुए काम किया। उसके बाद मैं आज दोपहर में ही हम ड्रामा की रिहर्सल करके यहाँ पहुँचे हैं। मेरे दिग्दर्शक श्री संजय पिंड से आज मौजूद है। तो ये तो है कि हर आदमी को कला से प्रेम होना चाहिए, लेकिन डॉक्टरी क्षेत्र में भी कला का बहुत महत्व है कि आर्ट इन मेडिसिन करके एक बहुत सुंदर प्रोग्राम मेरे गुरु श्री संजय पेंडसे ने डायरेक्ट किया था, जहाँ पे मेडिकल क्षेत्र में कला का महत्व, जिसमें ट्रीटमेंट के लिए खास तौर से जैसे कलर थेरेपी है, म्यूजिक थेरेपी है, डांस थेरेपी है, वॉइस थेरेपी है, ये सारे आर्ट फॉर्म्स एक पेशेंट को रिकवरी में मदद करते हैं। ऐसा स्टडीज में दिखाया गया है कि अगर ऑपरेशन थिएटर में अगर लाइट म्यूजिक चालू है तो पेशेंट और डॉक्टर दोनों रिलैक्स रहते हैं। तो ये एक कला का इम्पोर्टेंस मेडिकल क्षेत्र में भी है। तो ये सब बातें हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है कि अभी आप थोड़ी देर में आपका प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो फिर से एक बार सारे छात्रों का बहुत बहुत अभिनंदन। स्कूल को मैं अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ कि इस मेहनत से जो फाउंडर्स मदर सुपीरियर एलिस विंसेंट और फादर विंसेंट ने जो ये स्कूल 1975 में शुरू की थी, अब 2 साल में ही आपका गोल्डन जुबली आने वाला है। तो जाहिर है कि आप लोग को उस ओकेजन के लिए बहुत यू मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, एंड इट्स रियली अ ग्रेट थिंग। यू कैन लुक बैक 50 years back and say कि जो कार्य आपके फाउंडर्स ने शुरू किया, आप सभी लोग इस जनरेशन में आप उसको बहुत अच्छे से और उत्साह से आगे लेके जा रहे हैं। तो इसलिए मैं स्कूल को अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ।
और हर चीज़ में आज के कार्यक्रम जो शुरुआत से मैं देख रहा हूँ, जो आप हमको प्रोग्राम दिया गया उसमें बच्चों का आर्ट है, जो सुंदर से गुलदस्ते दिए गए, हर चीज़ की डिटेल्स की तरफ और कंपेयरिंग में भी मैं बोलूँगा मेरा मैडम ने जो सुंदरता से सब निवेदन कर रही है, तो ये पूरे कार्यक्रम की एक शोभा आप लोगों के मेहनत का एक फल है। तो बहुत मुझे अच्छा लगा यहाँ जाकर। धन्यवाद। All dear students, you are supposed to keep silence. We are going to start our cultural program very soon. But for some time you have to maintain silence. Now, आदरणीय संजय पेंडसे सरांनी आपल्याला मार्गदर्शन करावं अशी मी त्यांना विनंती करते. मैं ज़्यादा भाषण देने वाला नहीं हूँ, सब मेरे साथ कहेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वेरी गुड, अब शांत हो जाइए। सभी गणमान्य व्यक्ति जो रंगमंच पर बैठे हैं, खास तौर पे पेरेंट्स, जो मैं बच्चों की संख्या की दुगनी संख्या में देख रहा हूँ, रिस्पेक्टेड टीचर्स अपने अपने काम में सब बिजी है। मैं कुछ भी भाषण देने वाला नहीं हूँ, सिर्फ जिन्होंने अभी यहाँ पे ट्रॉफीज ली उन सबका अभिनंदन करता हूँ। मैंने देखा कि आपके करीबन नेशनल एंथम छोड़ के 30 परफॉर्मेंस होने वाले हैं, 30। उसी के इंतज़ार में पेरेंट्स भी बैठे हैं और बच्चे भी कलरफुल ड्रेसेस में बैठे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि बावर मैडम को मैं जब से जानता हूँ वो कला में रुचि रखती है। इसके पूर्व मैं आ चुका हूँ स्कूल में, और ये कला ही एक माध्यम होता है जो आपको यंग रखता है, आपको पढ़ाई में भी लगन से काम करने का एक शक्ति देता है। 4 आर्ट है, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा और पेंटिंग। एक कोई भी कला, पेरेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ, आपके बच्चों में हिडन टैलेंट जरूर होता है, उसे आप पहचानिए। पढ़ाई के साथ साथ उसे भी थोड़ा सपोर्ट करिए, आपके बच्चों का भविष्य जरूर उज्जवल होगा। ये स्कूल का मार्गदर्शन और इस सब टीचर्स का आशीर्वाद आपको है। मैं फिर सबको शुभकामनाएं देता हूँ और मेरे शब्द को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. After this, I'll respectfully invite Zode sir to speak few words on this occasion. New Apostolic Primary and High School, डॉक्टर बावर जूनियर कॉलेज, या स्नेह मैं मराठी में बात करूँगा। समजते ना सगळ्यांना मराठी? पेरेंट्सला पण समजते कारण सगळे मराठीच आहेत। तर आज या दोन्ही शाळांच्या स्नेहसंमेलनाप्रसंगी उपस्थित, व्यासपीठावर उपस्थित, ज्यांचं हृदय म्हणजे ते पेशाने जरी डॉक्टर असले तर आज कळलं की एका डॉक्टरच्या हृदयामध्ये एक कलाकार दडलेला आहे, ते डॉक्टर प्रशांत भांडारकर सर। ज्या नाट्यक्षेत्रामध्ये किंवा दिग्दर्शक असतील, कलाकार म्हणून या ठिकाणी उपस्थित असलेले, नामांकित, सुपरिचित नागपूरसाठी असलेले श्रीमान पेंडसे सर, या शाळेच्या मुख्याध्यापिका डॉक्टर बावर मॅडम, बेंजामिन मॅडम, लिली मॅडम आणि प्रशांत बेंजामिन सर, उपस्थित सर्व पालकगण, माझ्या विद्यार्थी मित्र मैत्रिणी, खरं तर उत्साह बघून असं वाटतंय की आता कार्यक्रम केव्हा केव्हा सुरू होणार आहे। इतका आनंद, इतका उत्साह विद्यार्थ्यांमध्ये आता आहे की आता आमचं भाषण ऐकण्याची त्यांची मुळीच इच्छा दिसत नाही। परंतु खरं तर या शाळेमध्ये मला वाटतं 2 वर्षापूर्वी एकदा येऊन गेलेलो होतो। एक शिक्षण विभागाचा अधिकारी म्हणून जेव्हा मी आलो तेव्हा बेंजामिन मॅडमशी आणि बावर मॅडमशी माझी भेट झाली। शाळेचा प्रगतीचा आलेख जर आज बघितला तर निश्चितच वाखाणण्यासारखा आहे। मॅडमनी बोलताना मला सांगितलं होतं की आमच्या शाळेतून एक टीव्ही कलाकार पण होऊन गेली आहे, तिचं नाव काजल काटे असेल, कदाचित माझ्या माहितीत स्मरणात असेल तर। आणि ती काजल काटे जेव्हा आम्ही सिरियल बघायचो घरी तेव्हा नेहमी यांच्या शाळेची आठवण यायची की ही विद्यार्थिनी काजल काटे जी शेफालीची भूमिका करत आहे ती या अपॉस्टॉलिक शाळेची आहे। याबद्दल सर्वप्रथम तुमचं बावर मॅडमचं आणि बेंजामिन मॅडमचं अभिनंदन। आता आपण जे पारितोषिक घेतले विद्यार्थी मित्रांनो,
आता गॅदरिंग म्हटलं की एक स्नेहसंमेलन केवळ क्रमिक अभ्यासक्रमच आपल्याला आनंद देतं किंवा आपली प्रगती होते असं नाही, तर क्रमिक अभ्यासक्रमासोबतच सहशालेय उपक्रमाची सुद्धा गरज असते. हे सहशालेय उपक्रम कशासाठी असतात, तर विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये अनेक सुप्त गुण असतात, त्या सुप्त गुणांना बाहेर काढण्याचं काम हे सहशालेय उपक्रम किंवा असे गॅदरिंग सारखे कार्यक्रम मधून आपल्याला दिसून येते. पालकांना माझी विनंती आहे, आता वेळ जास्त नाही आहे, बोलायचं तर खूप होतंय. शिक्षण विभागाचा माणूस म्हटलं की आम्हाला बोलताना 1 तासही दिलं तरी कमीच असतो, परंतु पालकांना एक विनंती आहे की आता हे स्पर्धेच्या युगामध्ये प्रत्येक पालकाला वाटते की माझा मुलगा हा किंवा मुलगी ही मेरिटमध्ये यायला पाहिजे, तिने 100 आउट ऑफ मार्क्स मिळवले पाहिजे, 100 100 गुण मिळवले पाहिजे. प्रत्येक पालकाची इच्छा आहे, ठीक आहे, मान्य आहे, इच्छा स्वाभाविक आहे, प्रत्येक व्यक्ती म्हणून ती मान्यही करूया. परंतु केवळ 10वीमध्ये जास्त गुण मिळवले, डॉक्टर झाले, इंजिनियर झाले म्हणजे खूप काही त्यांनी प्रगती केली असं होत नाही. सचिन तेंडुलकर असतील, अजून कितीतरी नामांकित खेळाडू असतील, कलेतले जर गणमान्य व्यक्ती असतील, तर त्यांच्याकडे बघा, त्यांचं शिक्षण जरी नसले तरी त्यांच्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी एकदम उच्चांक यशस्वी गाठलेला आपल्याला दिसून येतो आहे. म्हणून केवळ मार्कच्या मागे न लागता आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये जे जे गुण आहेत, ज्याला त्या क्षेत्रामध्ये आवड असेल त्या क्षेत्रामध्ये जाण्यासाठी तुम्ही प्रोत्साहित करा, हीच माझी आजच्या प्रसंगी पालकांना विनंती आहे. मग कुणाला क्रीडामध्ये असेल, कुणाला सांस्कृतिक याच्यामध्ये असेल, कुणाला गायनात असेल, कुणाला एक अभ्यास करण्यातच असेल, तर ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये त्याला आवड आहे त्या त्या क्षेत्रामध्ये जाण्यासाठी पालकांनी त्याला प्रोत्साहित करावं, ही माझी आपल्याकडून रास्त अपेक्षा आहे. आणि मी पालक म्हणून, माझी मुलगी यावर्षी 10वीत आहे, तिला म्हटलं बेटा तू प्रामाणिक प्रयत्न कर, जेवढे गुण येतील ते तुझे, असं काही नाही की मला आउट ऑफ मार्क्स पाहिजे आणि खूप मेरिटमध्ये दिसलं पाहिजे, बिलकुल मुळीच नाही. तुझी ज्या क्षेत्रामध्ये आवड असेल त्या क्षेत्रासाठी फक्त किमान आपल्याला ग्रॅज्युएशन म्हणा किंवा कुठेतरी शिक्षण महत्त्वाचं असतं, पण त्यासोबतच आपली जी आवड आहे, जी आपली कला आहे ती पण त्यांना जोपासायची आहे, त्यासाठी आपण प्रोत्साहित करूया. आणि शाळेचा आलेख मॅडमनी सांगताना सांगितलं की आउट ऑफ 100 म्हणजे रिझल्ट आहे, 100% रिझल्ट आहे. अनेक क्षेत्रामध्ये क्रीडा असेल, गायन असेल, अनेक क्षेत्रामध्ये त्यांचा या शाळेचा वावरसुद्धा आपल्याला दिसून आलेला आहे. निश्चितच ही शाळा जी छोटंसं वृक्ष बेंजामिन मॅडमच्या वडिलांनी जे लावलेलं आहे त्याचा आता वटवृक्ष झालेला आपल्याला दिसून येतो आहे. आणि अशीच शाळा ही उत्तरोत्तर प्रगती करेल, यात काही दुमत नाही. माझी आपल्या सर्वांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. आणि मला वाटतं की मुलांना आपल्या कार्यक्रम बघण्याची फार उत्सुकता लागलेली आहे, त्यामुळे मी माझं बोलणं या ठिकाणी थांबवतो. मला बोलावलं, माझा मान सन्मान केलात, माझा सत्कार केला, त्याबद्दल आयोजकांचं मी आभार मानतो आणि आपली रजा घेतो. धन्यवाद. Thank you so much, sir. Now for the presidential address, I respectfully invite Dr. Prakash Benjamin, sir. Please, sir. मंच पर विराजमान समस्त गेस्ट ऑफ ऑनर्स, डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड सभी स्कूल के स्टाफ, मैं इस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी है क्योंकि मैं आपकी तड़प को नहीं देख पा रहा हूं, जो आपके अंदर जो बेचैनी दिख रही है प्रोग्राम शुरू करने की, और इसलिए मैं समय नहीं कुछ भी लेना चाहूँगा. लेकिन मैं स्कूल मैनेजमेंट को और जितने स्टाफ है उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा आज के इस प्रसंग के लिए, जो तैयारियां करके वो यहाँ पर आए हैं, इस मुकाम पर आए हैं. तो जो यहाँ टैलेंट आप देखने वाले हैं उसका श्रेय आपके बच्चों को और उनके मेंटर्स को जाता है. इतना कहते हुए मेरी हार्दिक शुभकामनाओं को देते हुए मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. अपने हौसलों के बल पर अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच न दे हमको, हम मंच अपना बनाएंगे. जो कहते हैं खुद को सितारा है, जगमगा कर उनके सामने ही चमक कर देंगे इतनी फीकी, और सूरज खुद को बना लेंगे, सूरज खुद को बना लेंगे. With this determination, I hand over the mic to my students Aditi and Saili to conduct the cultural program.